Hello students, in this video we learn about the chapter number 2 Earlier Society from the standard 6 subject SS part History. The topic of this video is the Paleolithic age. In a previous video we discussed about the two topics. First one is understanding prehistory and second one is the Stone Age. So Stone Age has been divided into the three parts that we already learned in the previous video. First one is a Paleolithic age, second is a Mesolithic age, and third is a Neolithic age. So in this video, let we learn first that is a Paleolithic age. Paleolithic age. Paleolithic word is derived from the Greek language, or paleo means old and lithos means stone. That's why Paleolithic age is also called Old Stone Age or the Old Stone or a Paleolithic age, lasted approximately from a 5 lakh BCA to 10,000 BCA. यानी Paleolithic age जो है वो starting from a 5 lakh और 10,000 BCA तक रहता है. During this period, human beings lived a nomadic life and wandering in a groups from a place to place in a search of a food and a shelter. So what we learn? Okay, people are in a Paleolithic are nomadic. First of all, what mean of the nomadic? Nomadic means that people who don't live a settled life. They are moving from a place to place. That's called nomads and nomadic. और यहाँ हमें एक चीज़ देखने को मिली दैट इज वांडरिंग इन अ ग्रुप्स, यानी कि वो ग्रुप्स में रहना सीख रहे थे इन अ Paleolithic एज. द Paleolithic एज can be divided into the three parts: upper Paleolithic age, middle Paleolithic age, in a lower Paleolithic age. At this time humans were not the food producer, यानी Paleolithic age में humans जो थे वो food producer नहीं थे. That means they are not the introduced with the agriculture and farming. Examples: no vegetable or grains were grown by them, यानी वो वेजिटेबल्स को ग्रो करना या फिर ग्रेन्स को ग्रो करना जानते नहीं थे, बिकॉज दे हैव नो आइडिया अबाउट द एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग. However, there was a tremendous progress in a manufacture of tools along with the discovery of a fire. इसके बावजूद भी हमें Paleolithic एज में दो बहुत ही बेहतरीन ट्रिमेंडस यानी बहुत ही अच्छे प्रोग्रेस देखने को मिले. पहला था मैन्युफैक्चर ऑफ द टूल्स, यानी कि वो टूल्स बनाना सीख रहे थे या फिर टूल बनाना जान चुके थे. और दूसरी थी डिस्कवरी ऑफ अ फायर, यानी फायर की भी डिस्कवरी हमें Paleolithic एज में देखने को मिली. वी डिस्कस दिस बोथ टॉपिक इन डिटेल. Let's us learn more about the subdivisions of a Paleolithic age from the flowcharts given on the previous page. यानी कि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि Paleolithic एज जो है वो तीन डिवीजन है. फर्स्ट वन इज अ लोअर Paleolithic एज, सेकेंड इज अ मिडल Paleolithic एज एंड थर्ड इज अ upper Paleolithic age. So let's discuss the first one, that is a lower Paleolithic age or also called its early Paleolithic age. This is the flow chart. Let's learn first. Early Paleolithic age correspond to the time when the first stone tools appeared. यानी कि stone tools Paleolithic age में भी हमें कौन से एज में देखने को मिलता है? अर्ली Paleolithic age में. यानी stone tools appeared in a early Paleolithic age. The tools used were a hand axe and a chopping tools. यानी ये दो tools के नाम हैं. Let me show you the picture of a hand axe and chopping tools. This is the picture of a hand axe, this one, and this is the picture of a chopper या फिर chopping tools. Let's learn hand axe. It was a pear-shaped tools with sharp edges on all sides. It was used for cutting certain objects or for smashing things. यानी हैंड एक्स दो पर्पस के लिए यूज होता था. एक तो उसकी एजेस
शार्प थे, इसलिए वो किसी भी चीज़ को कट करने के लिए यानी ट्रीज़ को या फिर मीट को कट करने के लिए यूज़ होता था। और सेकेंडली यूज्ड फॉर द स्मैशिंग। अगर आप टूल्स का ये पार्ट देखो तो ये पार्ट जो है वो स्मैशिंग के लिए यूज़ होता था और ये एजेस जो है वो शार्प होते थे, सो ये कटिंग के लिए यूज़ होता था। नाउ डिस्कस चॉपर। इट वॉज मेड बाय शार्पिंग द थिनर एजेस ऑफ द स्टोन। इट वॉज यूज्ड फॉर अ चॉपिंग अ मीट। यानी चॉपर के ये एजेस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पतले और शार्प होते थे, जिसकी वजह से चॉपिंग ऑफ मीट यानी वो मीट को काटने में ही यूज़ होता था। At that time, the climate was extremely cold and many parts of the earth were covered in ice. This is why this age is also called and known as the Ice Age. यानी कि अर्ली पैलियोलिथिक एज या फिर पैलियोलिथिक एज जो है उसमें अर्थ जो था वो फुल्ली कवर्ड विथ आइस, यानी हमें पूरा आइस से कवर देखने को मिलता था। इसीलिए पैलियोलिथिक एज को जो है उसको आइस एज भी कहा जाता है। और एट दैट टाइम क्लाइमेट जो था वो एक्सट्रीमली कोल्ड था, यानी कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता था। इन इंडिया लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सोन इन पंजाब, नाव इन पाकिस्तान एंड रिवर नर्मदा। हमें यहाँ पर दो लोअर पैलियोलिथिक साइट दी गई है। फर्स्ट वन इज सोन इन पंजाब जो अभी पाकिस्तान में लोकेटेड है, एक पंजाब इंडिया में भी है और एक पाकिस्तान में भी है। और सेकंड है रिवर नर्मदा, यानी इंडिया में पर्टिकुलर कह सको तो वो नर्मदा रिवर के पास है, वही अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक साइट का एग्जाम्पल है। देन वी डिस्कस द सेकेंड, दैट इज अ middle Paleolithic. In the middle Paleolithic age, people largely used flat tools. Some home implements such as the needles have been found, indicating that furs and animal skins were sewed crudely to cover the human body. यानी मिडल पैलियोलिथिक एज में हमें फ्लैट टूल्स देखने को मिलते हैं और होम इम्प्लीमेंट्स यानी कुछ और भी टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक नीडल्स। नीडल्स जो है वो एनिमल की स्किन को स्यू यानी कि सीने के लिए भी काम आते थे, जिसकी वजह से वो ह्यूमन की बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े बनाते थे, विच आर मेड अप फ्रॉम द स्किन। हमारी तरह वो अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स नहीं थे जैसे कॉटन, सिल्क, बट दे आर यूजुअली यूज द एनिमल स्किन एंड लीव्स for making the clothes. This is the time when a people begin to form and live in a groups, यानी begin to form, यानी मिडल पैलियोलिथिक एज में वो लोग ग्रुप में रहना शुरू करते हैं। They begin to paint on the walls of a cave, यानी मिडल पैलियोलिथिक एज में वॉल्स पेंटिंग भी उन लोगों ने शुरू कर दी थी। They are start to live in a caves, that's why they are called the cave dwellers. तो वो केव्स में रहते थे और केव्स में जैसी उनकी लाइफस्टाइल थी उसके बारे में वो पेंट करते थे। इसी की वजह से हमें कुछ पेंट्स केव्स में देखने को मिलती है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बनते हैं। अ नोटिसेबल एस्पेक्ट ऑफ अ कम्युनिटी लाइफ दैट स्टार्टेड एट दिस टाइम वॉज अ बेरियल ऑफ द डेड। बेरियल मीन्स होता है दफनाना, यानी कि कम्युनिटी के बारे में और उसके जीवन के बारे में हमें जो खास चीज़ पता चलती है वो ये थी कि वो लोग डेड बॉडी को दफन करते थे। इन इंडिया मिडल पैलियोलिथिक साइट हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर लूनी इन राजस्थान एंड नर्मदा वैली। यानी हमें मिडल पैलियोलिथिक की भी दो साइट्स दी गई है इंडिया में। पहली है लूनी इन राजस्थान एंड सेकेंड है नर्मदा वैली। Let's learn third, that is the upper Paleolithic age. The upper Paleolithic age corresponds to the last phase of the ice age when the climate become warmer. यानी ice age हमने पहले डिस्कस किया था कि पैलियोलिथिक एज को आइस एज कहा जाता है क्योंकि एट दैट टाइम टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली कोल्ड और
earth is covered with the ice. That's why Paleolithic age is also called Upper Paleolithic age. People of those time mostly used blade tools. यानी वो किस तरह के टूल्स का यूज़ करते थे? ब्लेड टूल्स. यहाँ मिडल पैलेलिथिक एज में फ्लैग टूल्स और यहाँ पर ब्लेड टूल्स. एक और चीज़ है कि अपर पैलेलिथिक एज जो है उस टाइम क्लाइमेट है वो गर्म होना शुरू हो गया था. इसी के साथ फिर नियोलिथिक एज डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा. यानी कि फर्स्ट हमारा रहेगा पैलेलिथिक, फिर आएगा मीसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक. तो पैलेलिथिक एज के बाद डायरेक्ट आ जाएगा मीसोलिथिक एज. और मीसोलिथिक एज जो है वो थोड़ा हमारे लिए वार्म टेम्परेचर रहेगा. दिस पीरियड ऑल्सो शो द फर्स्ट ह्यूमन मेड शेल्टर्स. यानी अपर पैलेलिथिक एज में हमें ह्यूमन मेड शेल्टर्स देखने को मिलते हैं. पीपल बिगन टू मेक अ नेकलेस, ब्रेसलेट ऑफ मटीरियल्स लाइक शेल्स एंड बोन्स. यानी अपर पैलेलिथिक में पीपल जो थे वो ज्वेलरीज किस तरह की बनाते थे? नेकलेस और ब्रेसलेट. और वो कौन से मटेरियल का यूज़ करते थे? शेल्स एंड बोन्स का यूज़ करते थे. इन इंडिया द मोस्ट नोटेबल अपर पैलेलिथिक साइट्स हैज़ बीन फाउंड इन भीमबेटका इन मध्य प्रदेश. यानी इंडिया में जो फेमस अपर पैलेलिथिक साइट है वो है भीमबेटका, मध्य प्रदेश. लेट्स वी डिस्कस दैट इज पैलेलिथिक पीपल एंड नीड फॉर टूल्स. यानी कि पैलेलिथिक पीपल कैसे थे, किस तरह का फूड लेते थे और हाउ दे लिव देयर लाइफ. एंड सेकेंड थिंग इज दैट नीड फॉर टूल्स. यानी उन लोगों ने टूल्स बनाना क्यों शुरू किया, अदरवाइज उनको टूल्स की क्या ज़रूरत थी वो. सो लेट्स डिस्कस. The primary means of a survival of a people was a hunting animals and a gathering of plants for a food. Humans therefore required tools and weapons for hunting as well as processing food. यानी सर्वाइव, ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए जो मेन या इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है फूड. तो पैलियोलिथिक पीपल का जो मेन फूड था वो था एनिमल और प्लांट्स. सो दे आर टोटली डिपेंडेड ऑन द वाइल्ड एनिमल्स या फिर अदर एनिमल्स और प्लांट्स. तो अपना फूड को कंजर्व करने के लिए या फिर लेने के लिए उन्होंने टूल्स बनाए. दे आर मेड सम टूल्स विच आर मेड अप फ्रॉम द स्टोन. और ये जो टूल्स थे उसके द्वारा या उसकी मदद से वो लोग एनिमल्स को हंट करते थे, एनिमल्स को किल करते थे और फिर उसको खाते थे. एज वेल एज प्रोसेसिंग द फूड. और प्लांट्स में भी ब्रांचेस कट करने के लिए, फ्रूट्स कट करने के लिए, इसके लिए भी वो अलग अलग तरह का वेपन यूज़ करते थे. दे बिगन टू शेप अ स्टोन इनटू क्रूड नाइव्स, एक्स हेड्स, चॉपर, क्लीवर. स्टोन कुड sharpened into variety of size and did not break easily because these tools are made up of the stone. क्योंकि वो स्टोन से बने होते थे इसलिए इजीली टूटते नहीं थे. और इसके अंदर हमें वेराइटीज़ ऑफ द साइज़, यानी कि हर एक टूल्स की अपनी अलग अलग साइज़, ऑल्सो उसके शेप्स भी अलग होते हैं. फिर उसकी शार्पनेस, यानी कुछ है वो बहुत ज़्यादा धारदार होते थे, फिर कुछ एज़ कम्पेयर टू इतने नहीं होते थे. तो ये सब कुछ हमें पैलियोलिथिक एज और पैलियोलिथिक एज के टूल्स में देखने को मिलता है. Prehistoric people used tools for a variety of purpose: cutting meat, hunting animals, and cutting down trees, clearing forest, smoothen barks and animal skin. यानी प्री हिस्टोरिक पीपल जो थे वो स्टोन टूल का यूज़ इन सारे पर्पस के लिए भी वो करते थे. लेट्स लर्न द टाइप ऑफ टूल्स. यहाँ हम 3 तरह के टाइप्स पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज अ कोर टूल्स, सेकेंड इज अ फ्लैग टूल्स, थर्ड इज अ ब्लेड टूल्स. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट वन, दैट इज अ कोर टूल्स.
almost the size of a human hand and were used for throwing and ponding. यानी कि ये कोर टूल्स की आपको पिक्चर दी गई है, इसकी साइज जो थी वो ह्यूमन हैंड जितनी थी और इसका यूज़ थ्रो यानी ये एनिमल्स के ऊपर थ्रो, पॉन्डिंग यानी बहुत तेज़ी से एनिमल के ऊपर थ्रो किया जाता था, जिसकी वजह से एनिमल्स जो है वो हर्ट हो जाते थे या फिर इंजर्ड हो जाते थे और फिर उसको हंटिंग करना और किल करना बहुत ही ईजी रहता था. नाउ वी डिस्कस द सेकेंड, दैट इज़ अ फ्लैग टूल्स यूज फॉर अ स्कारपिंग. स्कारपिंग ये स्किन स्कारपिंग के लिए यूज़ होता था. फ्लैग टूल्स जो थे वो स्किन को बॉडी से अलग करने के लिए यूज़ होता था. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ फ्लैग टूल्स. नाउ वी डिस्कस थर्ड, दैट इज अ blade tools, and this is the picture of a blade tools. Twice in a length as their breadth, यानी उसकी ब्रेथ से उसकी लेंथ जो है वो कैसी है, ट्वाइस है, दुगना है. and gradually evolved into knives, spears and a arrowhead. Knives यानी छुरी जैसा, spears and arrowhead. Arrowhead means like this. This is called arrowhead. तो ब्लेड टूल्स में भी ये कुछ टाइप्स है जो देखने को मिलते हैं. और ये जो पार्ट है इस टूल्स का, ये शार्पर यानी कि ये धारदार होता था और इसी की मदद से वो कोई भी चीज़ को कट करते थे. सम अर्ली स्टोन टूल्स, यानी कुछ और हमें अर्ली स्टोन टूल्स दिए गए हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम ऑल्सो. अगेन हैंड एक्स. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ हैंड एक्स. इट वॉज अ पियर शेप्ड, यानी नाशपाती के साइज का था, विथ अ शार्प एजेस ऑल द साइड्स, यानी इसकी सारी साइड्स जो है वो शार्प होती थी. इट यूज्ड फॉर अ कटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स और फॉर अ स्मैशिंग थिंग्स, यानी ये ऑब्जेक्ट्स को कट और दिस पार्ट इज यूज्ड फॉर द स्मैशिंग. सेकेंड इज अ चॉपर. इट वॉज मेज्ड बाय sharpening the thinner edges of a stone. It was used for chopping a meat, यानी चॉपर का यूज़ है वो मीट को चॉप करने के लिए होता था. और एजेस आर थिनर एंड शार्पर, यानी इसकी जो ये एजेस थे वो बहुत ज़्यादा थिन और शार्प होते थे. क्लीवर. इट हैड अ वाइड चीजल टाइप ऑफ एजेस टू कट द अदर स्टोन और स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, यानी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ क्लीवर. इसका यूज जो था वो दूसरे पत्थरों को काटने के लिए और ट्रीज की ब्रांचेस को काटने के लिए यूज होता था. स्कारपर. इट वॉज यूज्ड टू क्लीन और स्कार्प द स्किन ऑफ अ एनिमल. When we discussed about the flake tools, we discussed that scarping of स्किन ऑफ एनिमल्स, राइट. तो स्कारपर का भी यूज़ यही होता है कि वो एनिमल की स्किन है उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए यूज़ होता था और इसकी ये एजेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती थी. एरोहेड. इट वॉज यूज टू किल अ रनिंग एनिमल्स, यानी ये एरोहेड की पिक्चर है. इसको स्टिक के साथ बांध देते थे लाइक दिस और फिर इसको दौड़ते एनिमल के ऊपर फेंका जाता था. दिस आर ऑल्सो. इसमें भी आपको वेराइटीज ऑफ द शेप्स देखने को मिल रहे हैं. लेट्स डिस्कस द ब्लेड टूल्स. लेट मी शो यू द पिक्चर फर्स्ट. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ब्लेड टूल्स. These were a small stone tools made by flaking. They had two parallel cutting edges, यानी दोनों तरफ उनका जो है वो कट कर सकते हो. इसका यूज़ जो है वो मेनली चीज़ों को कट करने के लिए, मीट को कट करने के लिए, ट्रीज को कट करने के लिए यूज़ होता था और ये भी एक तरह के स्टोन टूल्स ही है. सो लेट्स डिस्कस आवर next topic, that is discovery of fire. The most important feature of the Paleolithic age was the discovery of fire. यानी कि Paleolithic age में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स या फिर डिस्कवरी हुई थी वो थी डिस्कवरी ऑफ अ
fire. It was a turning point for humankind. टर्निंग पॉइंट यानी इसके बाद ह्यूमन काइंड जो है उसके खाने का पूरा तौर तरीका यानी उसकी जो सर्वाइव होने के चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. वो कैसे? लेट वी लर्न. थ्रू अर्ली ह्यूमंस may have seen a natural fire. The creation of a fire was a by chance or an incident. यानी कि अर्ली ह्यूमन जो थे उन्होंने नेचुरल फायर यानी कभी कभी जंगलों में अपने आप भी आग लग जाती थी. बाय थंडरस्टॉर्म. दो लकड़ियों के दो बड़े पेड़ जब गिरते थे तब वो अपने आप एक दूसरे से रब होते थे जिसकी वजह से भी आग लग जाती थी. अदरवाइज बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी बहुत फायर होती थी. पर असल में क्रिएशन यानी कि फायर कैसे ह्यूमन ने बनाई वो इसके बारे में हमें कुछ खास आइडिया नहीं है. बट इट बाई चांस यानी ऐसा कहा जाता है कि वो अचानक से और किसी तरह इंसिडेंटली हो गया. Archaeologists believe that fire was probably produced by rubbing the two stones against each other. यानी आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि फायर है वो दो स्टोनों को एक दूसरे के साथ रब करने की वजह से प्रोड्यूस होती है. Gradually, early humans learn how to use fire in a variety of a way. यानी अर्ली ह्यूमंस है उन्होंने भी फायर का अलग अलग तरीके से यूज़ करना सीखे था. Fire had the following advantages. So let's learn the some advantages of a fire. The first one is it could keep people warm and light up the dark caves. यानी कि keep the people warm. कोल्ड क्लाइमेट में ह्यूमन बॉडी को गर्म रखने के लिए फायर का यूज़ अर्ली पीपल करते थे. फिर लाइट अप डार्क केव्स यानी एट दैट टाइम इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी तो वो गुफा में अंधेरा होता था तो डार्क गुफा में या फिर डार्क केव में वो लाइट करने के लिए भी फायर का यूज़ करते थे. इट हेल्प्ड ह्यूमंस टू रोस्ट एंड कुक द फूड. यानी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अ फायर पीपल स्टार्टिंग द रोस्ट ऑफ द फूड यानी कि वो खाना को पकाना और कुक द फूड यानी कि कुक करना सीखे विद द हेल्प ऑफ फायर. इट वॉज यूज्ड टू scare away the wild animals and help early human in their battle for a survival. मैंने कहा ना कि जैसे उनके सर्वाइवल के चांस बढ़ गए तो किस तरह से कि पहले के टाइम पर उनके पास वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए कुछ खास नहीं था वेपन्स. पर जब फायर का इन्वेंशन हो गया तो वाइल्ड एनिमल्स जो है वो फायर से हमेशा दूर रहते हैं. तो ह्यूमंस जो थे वो अपने साथ हमेशा फायर को कैरी करके रखते थे ताकि वाइल्ड एनिमल से वो बच सके. वी लर्न अबाउट द डिस्कवरी ऑफ अ फायर बाय वाचिंग वन एनिमेटेड वीडियो. सो लेट्स वॉच द वीडियो. Hi kids, I am Howie. Today we will have fun learning about the discovery of fire. One of the greatest discoveries in prehistory was the discovery of the technology to make and sustain fire. Fire making was a discovery that changed prehistoric life forever. Let us look at how fire was discovered and the changes that the discovery of fire brought into the lives of the early humans. Early humans saw naturally occurring fires many times during sudden eruptions of gas from under the earth, lightning strikes, and volcanic eruptions. How did early humans capture and tame natural fire for domestic use? It may have begun when somebody brought a lit branch from a natural fire.
It had to be carefully maintained because if it went out, there was no known way to start it again. For this reason, fireplaces were closely watched day and night. It is also possible that early humans carried branches lit with fire with them when they moved from place to place. The next step was to be able to light one's own fire whenever it was needed. Early man could have done this in several ways, such as rubbing wooden sticks together, rubbing flint stones to create sparks which would fall onto dry grass and light up, striking a piece of iron with flint stone to produce sparks. Early humans must have found several uses of fire. Fire brought light and warmth for early humans and kept them warm in colder and darker areas. Also, their safety increased drastically as predators and other animals could be kept away from where they lived. The technique of lighting a fire improved over time. Early man discovered the use of fire for cooking and the hardening of stone spear points. Raw seeds and plants could now be cooked over a fire and eaten. Also, cooked food was softer and tastier than raw and would be easier for young children and the elderly to chew. Fire may also have played an important role in the early socialization of man. Fire brought people close together when they sat around fires. It led to the exchange of many ideas. With extra hours of light available to them, this time must have been spent around the fire, planning the next day's hunting trip, telling stories of a good hunt and preparing tools. Fire was a source of safety, warmth, social bonding, warm food, light, and inspiration. I hope you all had as much fun as I did learning about the discovery of fire by early humans. Till we meet again, keep learning, kids. So, by watching this video, we get the more idea about the discovery of a fire and also the advantages of a fire. Chesuanza in Kenya, East Africa, show the one of earliest evidence of a fire in the lower Paleolithic age. यानी लोअर पैलियोलिथिक एज में फायर की डिस्कवरी को लेकर हमें कुछ तरह के एविडेंस जो है वो हमें चेसुआंजा इन केन्या और ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिले थे. यहाँ हमें एक मैंड मैप दिया है फायर के बारे में. सो लेट्स डिस्कस्ड अबाउट दिस मैप. लोअर पैलियोलिथिक एज डिस्कवर्ड द फायर, यानी फायर की डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई वो तो हमने जान लिया कि इट्स बाय चांस, बट स्टिल वी हैव सम काइंड ऑफ एविडेंस, और वो पैलियोलिथिक एज में हुई. द क्रिएशन ऑफ अ फायर दैट इज बाय इंसिडेंस. एविडेंस ऑफ यूज़, यानी फायर का यूज़ कहाँ और किस तरीके से होता था उसके हमें कुछ एविडेंस है वो दो जगह पर मिले हैं, या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी जिसे आप कह सकते हो. एक है चेसुआंजा इन केन्या और एक है कुरनॉल इन इंडिया. ऑल्सो ईस्ट अफ्रीका भी इसका एग्जाम्पल रहेगा, पर यहाँ हमें एक इंडिया का भी एग्जाम्पल दिया है. नाउ वी लर्न द यूज़ ऑफ अ फायर, यानी कि फायर का यूज़ कहाँ होता था. प्रोवाइड द वार्मथ, लाइट अप अ डार्क केव, कुक्ड फूड and kept away the wild animal. यानी प्रोवाइड द वार्म, ह्यूमन बॉडी को गर्म रखने के लिए भी और वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखने के लिए भी ये यूज़ होता था. खाने को कुक करने के लिए होता था और डार्क केव्स को लाइट अप करने के लिए.
So this is the advantage of fire also. Now with this my end up of video. So what we discussed in this video, we discussed about the Paleolithic age जिसकी 3 टाइप है, लोअर Paleolithic age, middle Paleolithic age and upper Paleolithic age. Then we discussed about the people of a Paleolithic age and a need for the tools, जिसके अंदर हम टाइप ऑफ द टूल्स पढ़े, जिसके 3 टाइप्स थे, कोर टूल्स, फ्लैग टूल्स एंड ब्लेड टूल्स. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ अ फायर, और उसमें हम कि डिस्कवरी का क्रिएशंस कैसे हुआ और व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ अ फायर दैट वी learn. In next video we discussed about our next topic, that is a Mesolithic age.